Hello and welcome to The Print. We have with us Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari. Sir, welcome to The Print. I have my colleague, Senior Editor, Maushmi Das Gupta. Well, the highway sector as far as Dwarka Expressway is concerned has been grabbing headlines, and for all the wrong reasons. The CAG, in its report, which was tabled recently, had pointed out cost escalation that 1 kilometer of road cost around 250 crore as against the CCA approved 18 crore. So what exactly happened? The ministry had later clarified that there was some response that should have gone to the CAG. There was some delay in that, which led to the confusion. We have with us the minister who will explain, sir, what exactly happened. What is this cost escalation that is being talked about, and why is the opposition asking for a probe in the matter? Particularly when the Bharatmala proposal was submitted to the cabinet, in the cabinet there was written that 5,000 kilometer with the cost of 91,000 crore for 2-lane road, conversion of 2-lane road into 4-lane road, and that cost coming to 18 crore rupees per kilometer. And there was a note, I will give the document, and in that note it was written that after the DPR, then we can finalize the cost of ring road and the bridges also, because that is not included in it. Now the Dwarka Express Highway is actually of 29 kilometer as a per lengthwise is concerned. But when lane-wise you concern, it comes to 563 kilometers. Actually, the first package of 1,514 crore, that is below 11%, that is 76 kilometer lane was there. Package 2, that 4 bidder was there. The cost was 1,469 crore and the awarded cost was 1,540 crore, that above 4.83% above, that is 145 1-lane kilometer. Then package 3, 12 bidders were there. Cost was 1,780. It is below minus 25.12% and the lane was 223 kilometer. Package 4, it is again the minus 13.73 quoted and the kilometer was single lane 119. So total kilometer lane is coming 563 kilometer. So as far as what CAG has written already, so it comes 2-lane means 231.5 kilometer. So 231.5 kilometer multiplied by 9.35 crore per kilometer the cost is coming. And the estimated cost which CAG was telling was written, that is 18 crore. It is one and the same thing. But this is not a common road. In this particular elevated portion is total 192 lane kilometer elevated. Then at grade flexible, that is 266 kilometer lane kilometer. Single lane. Underpass, that is 33 lane kilometer underpass. Tunnel, that is 31 kilometer lane kilometer tunnel. There is a complete underground tunnel from Shivamurti, and there is higher side there is a road also of 8 lane. So there is a 16 lane road and service road it come to 22 lane. And the tunnel directly going to T3 and one tunnel crossing to going to road, this Gurgaon road, going to Vasant Vihar. So the ROB, the at grade rigid, it is a 29 kilometer single lane, and ROB is a total 12 lane kilometer ROB in this project. After that, there is minus 12% below the tender, and we save the money. But total lane kilometer is 563 kilometer. Unfortunately, the CAG counted only 29 kilometer because distance was 29 kilometer, and 2-lane paved shoulder the cost was 18 crore. Now it comes to 9.35 crore per lane kilometer. That is in place of 9 crore, it comes 9.35. But tunnels are there, ROBs are there. These are the technical. It is a state-of-art project. First time in India on a single pier, there is a 8-lane road is there. But sir, why did it happen? Wasn't there adequate communication from the ministry? Because when the CAG conducted their audit, there was one mistake from our side. When there was a discussion with the CAG, our officers explained the things. Right. And they presume that now they are convinced. Say don't give the reply in return.
and that was the lacuna from our side. And after that, now we have given the expression to everybody. And I am telling you, from last 9.5 years, we have just given in my all departments, water resources, MSME, shipping, ports, and Bharat Mala, Sagar Mala. It comes to approximately 50 lakhs crore. There is not a single charge of corruption. We are transparent, time-bound, result-oriented, and corruption-free. It's a technical problem which is raised by the CAG, and that was the approval from the cabinet for the program. It yeah. is not for project to project estimated cost. Individual one. It was a program approval, and it was written there that after approval of the program, we will take the all estimate, and with the DPR, we will complete that. So you're saying that you actually saved 12% of Yes, the cost? actually the cost of the project was 5,977 crore. That was the tender cost. And we have awarded with 5,269 crore, 12% saving. And approximate saving is coming up to of 700 crore is saving in this project. And the cost as far as CAG, which was estimated for 2-lane pave shoulder, the cost was 9.39 crore per lane kilometer, and here tunnels, railway overbridges, all the things, it comes to 9.35 crore per single lane kilometer. So this is the statistic. Anyone can come and he can verify. There is no problem about it. Sir, recently we have seen that, in Himachal Pradesh and Uttarakhand, there was massive floods, and lot of the highways constructed by NHAI got damaged. Especially many of the recently constructed highways also got damaged. So has the ministry assessed the damage there and also tried to look into why, so many recently constructed highways got damaged? Was it because of poor construction, and how much loss has happened because of that? Actually, मुझे हिमाचल प्रदेश जाने का मौका मिला. मैं थोड़ा जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी भी थोड़ी बहुत जानता हूँ. हिमालय में रॉकी नहीं है. हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जैसे डेक्कन जो है, ये है पूरा पठार, वो ब्लैक रॉक है. हिमालय मिट्टी है और उसमें पत्थर है. तो ये जो रॉक्स है, इसमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है. टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड. इट इज़ टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल. और ये जो पूरा मटेरियल है, ये पूरा लगभग इतना है कि मिट्टी जैसा है. बादल फटता है, बाढ़ आती है, रिवर डायरेक्शन बदल देती है. 40 तो बसेस बह गई, 30 वॉल्वो बसेस बह गई, कार बह गई, बिल्डिंगें बह गई. ये पहली बार इतना बड़ा बरसात आई है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है. तो रोड भी डैमेज हुई. दूसरी बात क्या हुआ, जैसे आप मनाली टू कुल्लू जाएगी, इधर हिमालय, इधर हिमालय. इधर हमने ये पुराना रोड, ये नया रोड बनाया, पर इधर पूरा हिमालय है. उसके बाद में गांव है हमारे रोड के बाजू में, गांव के बाद रिवर है, और रिवर के बाद फिर गांव है, और गांव के बाद फिर हिमालय. रोड है और रोड के बाद हिमालय है. तो ये एक्चुअली ऐसी सिचुएशन है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है. पर मैं मानता हूँ कि मैंने चीफ मिनिस्टर को एक सलाह दी, उनने एक्सेप्ट की. मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी चर्चा की कि हम 3 मीटर नीचे में ट्रेजिंग करें और एक 40 मीटर का एक पूरा लेन तैयार करके पानी के लिए जगह करें, और जो पत्थर निकलेगा वो हमारे स्टील की वायर में डालकर उसकी दीवारें 3-3 मीटर दोनों बाजू बनाएं, ताकि पानी गांव में नहीं घुसेगा और नदी अपना पात्र नहीं बदलेगी. मैंने खुद आंखों से देखा, इतने बड़े प्रमाण पर आपको भी वीडियो देखोगी, नदी इधर भागती है और इधर डैश करके इधर जाके रिबाउंड होती है. तो इतना नुकसान हुआ है, और ऐसे सिचुएशन में टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बदलाव करना पड़ेगा. ये बहुत बड़ा संकट है. और एक बात ज़रूर है कि हमने भी स्विट्ज़रलैंड से कुछ एक्सपर्ट बुलाए, मैंने उनसे प्रेजेंटेशन लिया, और स्विट्ज़रलैंड की भी जो एक प्रकार की जो लैंड और जो माउंटेन है वो हिमालय जैसे ही है. तो उन्हीं के आधार पर हम कुछ नए मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं. पर इस समय इतना बड़ा प्रकोप था, बादल फटे, बाढ़ आई, बरसात हुई, इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल. ये एक नेचुरल कैलेमिटीज़ है, क्लाइमेट चेंज भी का प्रॉब्लम है, पर इस रियली बहुत नुकसान हुआ है. मैंने खुद आंखों से देखा है. Sir, environmentalists and road sector experts are also saying that the cutting of the hill for construction of highway is to be blamed for this. So how do you see it? देखो, आप दोनों बाजू से बोलते हो. लोग पहाड़ पर रहते तो रोड बनाने चाहिए. आप मनाली गई हो और कुल्लू से मनाली एयरपोर्ट से देखा है, दोनों बाजू पहाड़ है, तो मैं क्या आसमान से रोड बना सकता हूँ?
अगर मुझे अच्छा टूरिस्ट जा रहे, लाखों करोड़ों लोग जा रहे, 50,000 गाड़ियाँ अटकी हुई थी, अब उनके लिए रोड नहीं बनाने पड़ेंगे तो कैसे होगा? अगर टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तो लोगों की उपजीविका का साधन क्या है? एक्सेसिबिलिटी तो जरूरी ऐसा है। है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, विकास भी होना चाहिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसीलिए मैंने जो सोल्यूशन दिया वो चीफ मिनिस्टर को दिया है। मैं फ्री ऑफ चार्ज ये काम करने के लिए तैयार हूँ, वही मटेरियल मैं रोड में यूज़ करूँगा। मैं महाराष्ट्र में जहाँ पानी की कमी है वहाँ हम दौड़ने वाले को पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। हम इस पे काम कर रहे हैं, तो उससे वाटर कंजर्वेशन बढ़ा। 1 घंटे कुएं का पानी चलता था, 24 घंटे चलने लगा। लोगों ने सोलर पंप लगाए, किसान आत्महत्या कर 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। अब पानी के कारण उनका जीवन समृद्ध बना है। हमको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और देखो, हम लोग परली से बायो बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं। हम दिल्ली के और अहमदाबाद के कचरे को 30-30 लाख टन, ये UR2 और अहमदाबाद डोलोरो प्रोजेक्ट में 30-30 लाख टन कचरा डाल दिया। हमने रबर के टायर इंपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट टायर, उससे रबर निकाल के बिटुमिन में 15% डाल रहे हैं, प्लास्टिक 7% डाल रहे हैं। बाम्बू का हमने क्रैश बैरियर बनाया। हमने करीब 67,000 पेड़ को ट्रांसप्लांट किया। 100 साल पुराने पेड़ वड़ के मैंने पैठन जगह है औरंगाबाद के पास, हमारे साउथ इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर है, विलन का काम करे, सयाजी शिंदे, उनका NGO है, उनके साथ काम किया और हमने उन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया। तो हम लोग 3.5 करोड़ हमने नए पेड़ लगाए, वो अटैक किया है। और हम इन्वायरमेंट के विरोध में हैं क्या? देखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी चाहिए और रोड भी चाहिए, पर हिमालय ऐसी ज्योग्राफी है कि वहाँ हम प्रॉब्लम ही है। पहले तो रिवर के बाजू में रोड बने थे, तो टनल बना रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दोनों के बीच में, दोनों को प्रोटेक्ट करके हमको इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करके डेवलपमेंट को भी आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जीवन भी हमको सस्टेनेबल करना होगा। So the BJP government will be completing 10 years next year. How do you assess the performance of the highway sector since 2014? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 47 को हमको स्वाधीनता मिली और हम देश का अमृत महोत्सव बनाकर 75 साल पूरे कर रहे हैं, और इसमें से 60 साल मौका कांग्रेस को मिला। हमारे यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हम आए, आज लगभग हम 10 साल पूरे करेंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60-65 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा रोड का काम हमने, हाईवे का काम किया है। मैं आया तब 92,000 किलोमीटर रोड नेशनल हाईवे था, अब 1,47,000 किलोमीटर हुआ है। हमारे देश में हम सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, 65 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है और 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे है। और उसके बाद हमने जो काम किया है, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, वो 3 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई 12 घंटे में, बंगलोर से मैसूर 1 घंटे में हमने कर दिया रोड। अब चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। ऐसे कितने हाईवे बना रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कहीं भी अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, अब देश के कोई भी कोने में जाओ और हमारे कार्यकर्ता को नहीं, ड्राइवर को पूछो, वो आपको बताएगा कि देश में हाईवे में कितना सुधार हुआ है। और मुझे लगता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीज़ें मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित हुई है, इसके कारण इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस को बढ़ावा मिला है। इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम ग्रोथ बढ़ेगी। और हिंदुस्तान, मोदी जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने, सुपर इकोनॉमिक पावर बने, आत्मनिर्भर भारत बने। ये मार्ग रोड से जाता है और रोड से समृद्धता और संपन्नता आती है। रोड से लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, जो 16% है, वो सिंगल डिजिट है, 9% में 2024 समाप्त होने के पहले लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल के लिए इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, हाइड्रोजन, ये नए नए फ्यूल ला रहे हैं। जो देश में बनती है 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, वो कम होगा।
प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री। अब इलेक्ट्रिक हाईवे हम बना रहे हैं दिल्ली से जयपुर, तो नेचुरल इन सब बातों के परिणामों से देश का विकास होगा, नए रोजगार की निर्मित होगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम तीसरे नंबर की वर्ल्ड की इकोनॉमी बनने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम यशस्वी होंगे। सर 2014 में जब आपने चार्ज लिया हाईवे सेक्टर का, तो इन अ वे कहा जाता है कि आपके अंडर में हाईवे सेक्टर जो है, देयर वाज अ टर्न अराउंड ऑफ द हाईवे सेक्टर। मतलब जहाँ पे पर डे जितना रोड बनता था, आपके अंडर में इट गॉट डबल्ड, एंड देयर इज दिस परसेप्शन आल्सो दैट यू आर अमंग द बेटर परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट 2014 onwards. The number of kilometers of highways that have been constructed, the innovative technologies that have been used, but also there is a perception that you have not got your due in this government. So what do you have to say to that? What? You have not got your due in the government. No, everything is there. Actually, हम जो कुछ काम कर सके वो प्रधानमंत्री जी और बाकी सब डिपार्टमेंट और राज्य सरकार के सहयोग के कारण कर सके। देखो, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस हमको भारत सरकार और राज्य सरकार का लेना पड़ता है। यूटिलिटी शिफ्टिंग में राज्य सरकार और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सहयोग लगता है। लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार के सहयोग से करते हैं। बजट हमको वित्त मंत्री जी ने 2,80,000 करोड़ का दिया है। हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमको सब लोगों ने जो सहयोग किया, उसी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने ये काम किया। सर, प्राइम मिनिस्टर ने अभी जब रेड फोर्ट से एक स्पीच दिया, उसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर 2024 में भी मैं यहाँ से जनता को संबोधित करूँगा। तो आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि एनडीए की सक्सेस को लेके एज फार एज लोकसभा इलेक्शंस आर कंसर्न? देखो, हमने जो कांग्रेस 60-65 साल में नहीं की, वो हमने इस 10 साल में करके दिखाया। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस देश को हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा सपना है। $5 ट्रिलियन बनाने की इकोनॉमी बनाने की हमारा उद्देश्य है। और जिस प्रकार से देश आगे जा रहा है, देश में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, रोजगार की निर्मित हो रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में हम बढ़ रहे हैं, टूरिज़्म को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। तो जनता ये विकास के कार्यों को देखकर मोदी जी के नेतृत्व में हमको फिर से बहुत अच्छे वोटों से चुनकर देगी और 2024 में हमारी सरकार आएगी और मोदी जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, एक इंडिया अलायंस बनकर आया है जो कि काउंटर कर रहा है एनडीए को। आपने देखा होगा कितने सारे उसमें लीडर्स हैं। आपको क्या लगता है उनमें से कौन एक है जो एक तरह से फिर भी एक थ्रेट एनडीए को दे सकता है? कोई हमको थ्रेट नहीं है। जब हम स्ट्रांग होते हैं और बाकी लोग वीक हो जाते हैं तो अलायंस बनती है। ये अलायंस बनने का कारण यही है कि हम स्ट्रांग हैं और उनको पता है कि हम इनको नहीं हरा सकते, इसलिए जो दुर्बल लोग थे सब इकट्ठा हो गए। तो ये पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शन चलते रहता है। मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई 2+2 नहीं होता। मुझे याद है कि इंदिरा जी के खिलाफ सब पार्टियाँ एक हुई थी, कांग्रेस हो, जनसंघ व लोक दल, समाजवादी पार्टी, और एक बड़ी आघाड़ी बनी थी। और जब उनके वोटों की तुलना की थी तो ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, और उस चुनाव में कांग्रेस जीत गई। तो 2+2 राजनीति में नहीं होते। और ये लोग कितने भी इकट्ठा होंगे, ये इसीलिए हुए कि हम स्ट्रांग हैं, हमने अच्छा काम किया है और हमको हरा नहीं सकते इंडिविजुअली, इसलिए उन्होंने अलायंस का निर्माण किया है। और दूसरी बात, उन्होंने नाम बदल दिया है। जब देखो कोई उद्योग व्यापार क्षेत्र में कोई आदमी दिवाला पिटता है तो अपना पुराना नाम हटाकर नया नाम लेता है और नए फिर से नया अकाउंट खोलता है बैंक में, क्योंकि एनपीए होने के बाद बैंक में फिर नया लोन मिलता नहीं, फिर नए नाम से फिर बैंक में जाके लोन लाता है। ये वैसी बात है, जिनका दिवाला पिट चुका है वो नया दुकान खोल रहे हैं। पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, जो नाम अपने आप में है, वो जनता के बीच थोड़ा एक तरह से पॉपुलर हो रहा है। मुझे नहीं लगता। ये तो अनेक बार हुआ, अनेक आघाड़ियाँ हमारे खिलाफ लोग इकट्ठा हुए बने हैं। अब एनडीए का भी फॉर्मेशन हुआ है, मुझे इसकी कोई संभावना नहीं लगती। Sir, when you took over as highway ministers, at that point of time, you also proposed that all the infrastructure ministries there should be one infrastructure ministry, omnibus ministries. उस बारे में proposal भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी. So what is your view on this? That instead of having separate rail, कितने मंत्रालय बनाना और किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय सौंपना, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज होता है। अमेरिका में ऐसा है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ही मिनिस्ट्री है और कुछ देशों में अलग अलग मिनिस्ट्री है। तो मुझे लगता है ये तो प्रधानमंत्री का ही अधिकार है और जो उचित होगा वो निर्णय वो करेंगे। सर 2024 में बीजेपी
अगर आती है वापस, तो आप क्या यू वुड वांट टू बी द हाईवे मिनिस्टर ओनली, और यू आर इंटरेस्टेड इन अदर सेक्टर्स? आपको फिर से बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा, और जब नेतृत्व की वो शपथ लेंगे तो अपना मंत्रिमंडल और विभाग ये बनाने का उनका अधिकार है, ये उनकी फ्रीडम है, उनका प्रिविलेज है। उसके आधार पर उसका निर्णय वही करेंगे और वही बता पाएंगे। सर 2014 का अगर हम इलेक्शन देखें तो एक मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बारे में था। उसके बाद 2019 में हमने देखा बालाकोट स्ट्राइक आया, उसके बाद जिस तरह का गवर्नेंस आप लोगों ने दिया वो आप लोगों का पोल प्लान था। अगर हम 2024 की बात करें तो क्या एक सेंट्रल थीम होगी, क्या लेकर आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। हिंदुस्तान ने 75 साल के इतिहास में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी बातें की पर वो नहीं हो, गरीबी हटाओ की बात भी नहीं हो पाया। आज पहली बार नीति आयोग ने बताया कि गरीबी रेखा के ऊपर कितने लोग आ गए। तो यह देश बदल रहा है, देश का विकास हो रहा है, रेलवे बदल रही है, हवाई एयरपोर्ट दुगने हो गए हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में पूरी रेलवे पहुंच गई है, रोड नेटवर्क बढ़ा है, हम अब वाटरवेज बना रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अभी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम जब आए तो 4.5 लाख करोड़ की थी, आज 12.5 लाख करोड़ की हो गई है। हमारा नंबर 7वां था, अब तीसरा आया, हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर हम आ गए, जापान चौथे नंबर पर गया। तो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बदल हो रहा है, इरिगेशन सिंचाई बढ़ रही है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि हमारी सरकार ने वो करके दिखाया। उसी के आधार पर लोग हमको सपोर्ट करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हम जीत के आएंगे। सर, आप फ्लेक्सी फ्यूल की बात करते हैं, इथेनॉल की बात करते हैं, एंड इनफैक्ट यू आर वन ऑफ द मिनिस्टर्स who have brought in lot of these innovative technologies in the infrastructure sector. So, इसका अभी क्या status है? How do you see the future as we go forward? As far as देखिए, मैं 2004 से बोल रहा हूँ, तब लोग मुझे विश्वास नहीं बैठता था। आज देखो इकोनॉमी बदल गई, इथेनॉल आ गया। और कल मैं टोयोटा की जो ये इनोवा गाड़ी है वो 100% बायो इथेनॉल पर लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें 40% बिजली तैयार होगी और एवरेज के हिसाब से कॉस्ट आएगी 20 रुपये पेट्रोल का रेट आएगा, उस हिसाब से आएगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा, इथेनॉल किसान बनाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो आज हमारा किसान अन्नदाता है, अब वो ऊर्जादाता बनेगा, वो विटामिन दाता बनेगा। तो हमारे किसानों का, गांव गरीब मजदूर किसान का कितना भला होगा। और 16 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का। कितना प्रदूषण होता है दिल्ली में, कितनी बीमारियां इसके कारण। हम रोड ट्रांसपोर्ट का 40% एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है। और मैं मानता हूं कि हमारे बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक और मेथनॉल, हाइड्रोजन, इससे देश में प्रदूषण कम होगा, सस्टेनेबल जीवन लोगों का अच्छा होगा, इंपोर्ट कम होगा, इकोनॉमी सुधरेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे, किसानों का भला होगा और देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। बस इसके लिए तो स्केलिंग अप की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है मतलब टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ की, अनलेस एंड अनटिल वो उस लेवल पे ना पहुँचे कि मास यूज़ कर पाए, तब तक तो उसका मतलब डायरेक्ट ये बढ़ रहा है ना। आप देखिए, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार, अब 10,000 बसेस भारत सरकार ले रही है, कितना पॉपुलर हो गया। तो आप ये समझिए कि आज वेटिंग लिस्ट लग गई इलेक्ट्रिक कार के लिए। तो इसका मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है और लोग कन्विंस है, इसीलिए हो रहा है। सर, आपने इसके बारे में भी बात की हुई है, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में और बता सके कि इंडिया शुड फोकस ऑन टर्निंग हेयर इनटू एन एग्री प्रोडक्ट, तो इससे आपका क्या मतलब, क्या देखते हैं आप? ये हमारी चावल हमारे पास सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, शुगर सरप्लस, हमारे देश में वीट सरप्लस, तो भाव नहीं मिल रहे। हम MSP के नीचे मार्केट और कमर्शियल प्राइस है, और इसलिए आने वाले समय में हमारा किसान अनाज, हम तो अन्नदाता है किसान, और उसके साथ ऊर्जादाता बनेगा। तो ये जो 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है, उसमें से 2-3-4 लाख करोड़ अगर किसानों में जाएंगे, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आएंगी, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। जैसे स्मार्ट सिटीज़ है, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे,
वहाँ अच्छे एजुकेशन स्कूल, हॉस्पिटल्स आएंगे, और जो आज 120 एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और 500 ब्लॉक्स है, वहाँ का ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इसलिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था अंत्योदय, कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनके लिए हम काम करें। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। हम उसी दिशा से जा रहे हैं और उसी दिशा में हमको ये परिणाम पूरे मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, अभी जैसे बीजेपी को एक तरह से इस तरह की पार्टी माना जाता है जहां पर यंग जो फेसेस हैं, जो यंग एनर्जी है, उनको काफ़ी फोकस में रखा जाता है। तो अगर हम आज के टाइम में देखें तो आप ऐसे कौन से यंग फेस को आप कहेंगे बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं अभी बीजेपी में? हम भी यंग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पिता पुत्र की और माँ बेटों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये विचारधाराओं के आधार पर देश के लिए काम करने वाली पार्टी है। नेशनलिज्म हमारा, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन, सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय हमारा उद्देश्य है। और इसलिए जो कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता आते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। अटल जी कहते थे कि प्रधानमंत्री आएंगे, बदल जाएंगे, पार्टी आएगी, चली जाएगी, पर ये देश यही रहेगा। हम देश के लिए काम करें, हम 2-4 रहे न रहे, पर देश का, हमारे मातृभूमि का वैभव अमर रहे माँ, ये हमारी साख है। और पीढ़ियाँ बदल रही है, नए लोग आ रहे हैं पार्टी में, नया नया नेतृत्व। मैं एक समय बहुत दीवार पर पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता था, कभी दिल्ली नहीं आया था, पर इस पार्टी ने जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी बैठे, उस पर बैठने का मुझे मौका मिला। तो ये पार्टी निश्चित रूप से युवाओं को प्रोत्साहन देती है। मैं सबसे कम उम्र का बीजेपी का प्रेसिडेंट उस समय बना था। तो मुझे लगता है कि युवाओं को मौका मिलता है, पीढ़ियाँ बदलती है और हम उनके हाथ में सौंपते जाते हैं, यही हमारी प्रक्रिया है। और इसीलिए पार्टी में ये कंडीशन नहीं है कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा और एमएलए के पेट से एमएलए नहीं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसी को प्रोत्साहन मिलता है। आपने वाजपेयी जी की बात की, तो मैं बस पूछना चाहूंगी कि आप एक ये जो पूरा एवोल्यूशन है बीजेपी का, उसको कैसे देखते हैं, जो एक एनडीए उस समय की और आज की थी? जनसंघ से लेकर संघ के और जनसंघ के अनेक स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं ने हमारी विचारधारा के लिए अपने जीवन को जो न्यौछावर किया है। इमरजेंसी में अनेक लोग जेल में गए, उन्हें बहुत यातनाएं सहन की। उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम और बलिदान के कारण मेरे जैसे नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को आज ये दिन देखने के लिए मिला है। उसके पीछे उनकी तपश्चर्या है। अटल जी और अडवाणी जी ने इस पार्टी को बड़ा किया है और हमको एक बड़ी पार्टी बनाकर हमारे हाथ में सौंपी है। हम उनकी किए हुए कार्य को कभी भूल नहीं सकते, और आज जो कुछ है उन कार्यकर्ताओं के कारण और उन नेताओं के कारण है। पर आज कुछ चेंजेस दिखते हैं आपको उस समय से लेके अभी तक? चेंजेस तो होते हैं। देखो, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। पहले धोती वाले लोग बहुत पार्टी में थे, अब तो कोई दिखता नहीं। अब पैजामा, शर्ट और कुर्ता, और अभी शर्ट पहन के लोग आते हैं। ये पार्टी युवाओं की पार्टी है, तो नेचुरली बदल तो होता ही है, और बदल होना ये नेचर का नियम होता है, और बदलते परिस्थिति में सब होता है। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा संविधान की एक केस सुप्रीम कोर्ट में चली थी। तब सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस में, और वो जजमेंट ये था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विचार, राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव और सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय, ये हमारा कैरेक्टर है, ये कभी बदलेगा नहीं। उसी के आधार पर पीढ़ियाँ आएगी, लोग आएंगे, नेता आएंगे, बदल जाएंगे, पार्टी में नए नए नेता आएंगे, पुराने नेता निवृत्त होंगे, पर विचार वही रहेगा जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण का, इस मातृभूमि के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने का इतिहास है। वही इतिहास आगे लेकर पीढ़ियों से पीढ़ी इस राष्ट्र को दुनिया की महाशक्ति बनाना, विश्वगुरु बनाना, दुनिया की ताकत बनाना, यही सपना है। सपना बदलने वाले लोग बदलते रहेंगे, पीढ़ियाँ बदलती रहेगी, पर एक दिन ये सपना पूरा होगा और वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सर, पीएम आज काफ़ी बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की।
सो आपका क्या मानना है इस बारे में? हाउ डू यू सी इट? नहीं, ये बिल्कुल सही कहते हैं, जितना कार्य महत्व का है उतना कर्तव्य भी महत्व का है, और संविधान में जितना स्वातंत्र्य मिला उतना कर्तव्य भी है। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, पर हमारे कुछ कर्तव्य भी है। अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए और कर्तव्यों का पालन होना चाहिए, यही लोकतंत्र का भावार्थ है। और इसी के आधार पर कम टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, हमारा ये 4 पिलर पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। पहला पिलर है जुडिशरी, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव विंग, तीसरा पिलर है मीडिया और चौथा पिलर है लेजिस्लेटिव विंग। और चारों के आधार पर लोकतंत्र वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उसके साथ हमारे विचारों को लेकर हम आगे जाएंगे। जनता की अदालत में जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगी, और नहीं बनेगा तो विपक्ष में लोकतंत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यही प्रथा और परंपरा के आदर्शों पर भारतीय जनता पार्टी चलती आई है और आगे भी चलेगी। सर, सबकी कोई एक विश लिस्ट होती है। अगर हम हाईवेज़ की बात करें, क्या ऐसी एक चीज़ है जो आपको लगता है आप अभी भी करना चाहेंगे जो अभी नहीं हो पाई है इस सेक्टर में? देखिए, हम रोड एक्सीडेंट से बहुत दुखी हैं। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% है। रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत सुधार किया है। अब उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट, तो नया मोटर सेफ्टी कानून भी लाया। अब है इमरजेंसी, यानी मदद करने के लिए एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, उसकी भी योजना कर रहे हैं, पर ये वक्त ही ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, ह्यूमन बिहेवियर को बदलना। जैसे हम रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, हम मोबाइल पर कान पर लगाकर स्कूटर और कार नहीं चलाएंगे, रेड सिग्नल होगा तो रुक जाएंगे, सेफ्टी और रूल्स ऑफ द रोड का पालन करेंगे। ये जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। हम रोड अच्छे बना रहे हैं, पर हिंदुस्तान के लोगों का माइंड सेटअप, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। आगे और मिलाने की मीडिया के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ, NGOs के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ और स्कूल के साथ सबका सहयोग लेकर इसको बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ निश्चित रूप से यश मिलेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, मिजोरम। आप कैसे देखते हैं बीजेपी की तैयारियों को देख के? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप इसको देखते हैं? तीनों राज्यों में हमको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार आएगी, इससे मुझे पूरा विश्वास है। और जनता अपने विकास के लिए बीजेपी को ही चुन कर देगी। Thank you so much for joining us, sir. This is Neelam Pandey and Maushmi Das Gupta for The Print.